सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है फाइनेंसेस से हटके, फाइनेंसेस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, बट उससे पहले एक मेंटल वॉर जो आप मिनिमम 5 इयर्स तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लड़नी पड़ेगी, आपको उसके लिए रेडी रहना बहुत जरूरी है जी। तो ये सबसे बेसिक चीज है कि बी मेंटली प्रिपेयर। फर्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप उस चीज से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। हो सकता है आपका फर्स्ट आइडिया फ्लॉप, सेकंड आइडिया फ्लॉप हो, थर्ड आइडिया फ्लॉप हो, आइडियाज फ्लॉप होते हैं, बट इफ यू हैव दैट स्पिरिट, आपके पास वो करेज है कि बार बार नीचे आके भी वापस से उठना, बार बार डिफीट होके भी दोबारा फाइट को, वो करेज होना, सो देन यू आर एंटरप्रेन्योर एंड देन बी मेंटली रेडी फॉर द वॉर। तो अगर ये 2 चीजें आपके पास हैं तो आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। अपना जो आपका फाइनेंसेस है एटलीस्ट 5 इयर्स तक का बैकअप अपने पास रख के चलिए। लोग 1 ईयर कहते हैं, मैं कहता हूँ 5 इयर्स तक का बैकअप रख के चलिए। मेंटली प्रिपेयर रहिए क्योंकि सोसाइटी हरास करेगी, सब लोग आपको हरास करेंगे, तो उस हरासमेंट से बच के चलिए। और एक मेंटोर अपनी लाइफ में जरूर रखिए जिनसे आप खुल के सब कुछ कह सकें, नहीं तो मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है फिर आपको सुसाइड ही एक ऑप्शन दिखता है। Hello all, welcome to our podcast, a podcast where we try to dive into the extraordinary minds of people who have either broken barriers, shaped industries, or those who can inspire billions. Today we have with us Shashank Singh. Shashank Singh is the founder of the Shashank Singh Personality Development School located in Shadra. Also, he has moved to different locations. He has opened his 4 branches by now in different locations. So today we'll be learning how a startup becomes successful. Because we all know that people around us, and maybe some of you must have started a startup in past or maybe running a startup right now, and how difficult is to make a startup successful. In this podcast, we'll be learning what exactly makes a startup successful. Is it the vision, the team, the clear objective, or anything else? Let's learn about this. Also, in his institution, he works on 4 dimensions that make a person more confident and transforms the entire personality of an individual. So in this podcast, we'll be elaboratively learning about those 4 dimensions that we can work on and make ourselves a better individual. So stay tuned till the last of the episode and please subscribe to the channel. Hello Shashank, welcome Hi. to our show. Please introduce yourself to our audience. Okay, thank you, Ramnik, for calling me in this show. So I'm Shashank Singh. Right now, I'm the founder and director of Metamorphosis Dandy Skills and the Shashank Singh Personality School, which is a personality development institute with a specialized 4-dimensional identity transformation program. So this is all about me right now. Very nice. So हमने बहुत सुना है सर आपके बारे में, मैंने रिसर्च भी किया, तो हमें आप पता चला कि आपकी 4 ब्रांचेस हैं शशांक सिंह पर्सनालिटी स्कूल की, एंड वहाँ पे आप 4 डायमेंशंस पे वर्क करते हैं एक इंडिविजुअल की फॉर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन. थोड़ा उसके बारे में बताइए. So Ramnik, if we'll talk about personality development, बहुत सारे institutions जो इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, they are just working on their attire, how they look, how they walk, body language and language. जी. That's it. But actual personality है क्या, उसको समझने के लिए समझना पड़ेगा what is व्यक्तित्व. हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व की एक्चुअल डेफिनेशन है कि आप अंदर से क्या है. तो आप कैसे सोचते हैं, आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. इफ योर ऑब्जर्वेशन इज नॉट गुड जी, सो आपकी एक्सप्रेशन कैसे अच्छा होगा. सो इफ आई टॉक अबाउट माई इंस्टीट्यूशन, और जो आपने 4 डायमेंशंस की बात करी, तो पहले मैं उन 4 डायमेंशंस को जस्टिफाई करता हूँ. तो डायमेंशंस आर मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल. ओके, talking about mental dimension or emotional dimension and physical dimension first, and then we'll talk about the spiritual dimension. So इन तीनों dimension को जब align करते हैं, so देखते हैं कि आपका response time कैसे increase हो सकता है. Okay. बहुत सारी queries आती हैं ऐसे कि मुझे confidence build up करना है. हर कोई जो personality development के sector में आ रहा है और एक inquiry लेके आ रहा है, तो उन सब का एक ही agenda है, confidence चाहिए और अच्छी language चाहिए, मतलब अच्छी command on English चाहिए. बिल्कुल. सो उन सभी से मैं ये कहूंगा कि कॉन्फिडेंस एक प्रोडक्ट नहीं जो मार्केट में मिलता है. उसके लिए यू नीड टू गैदर द नॉलेज एंड द राइट नॉलेज. इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली नहीं चाहिए. सो राइट अमाउंट ऑफ नॉलेज आपको चाहिए, परफेक्ट नॉलेज चाहिए, और उसके लिए आपको सही ऑब्जर्वेशन चाहिए. उस ऑब्जर्वेशन के बाद आपको चाहिए विजडम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. बिल्कुल. सो
उन फैक्ट्स के ऊपर सोचने के लिए भी आपको एक कॉन्शियसनेस चाहिए। तो इन सब चीजों का जो एक कॉम्बिनेशन है, दैट इज 4DITP। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हाउ टू प्रेजेंट एंड एक्सप्रेस, वो एक सेकेंडरी चीज है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू, बट द प्राइमरी फाउंडेशन पार्ट इज दैट हाउ टू थिंक, your consciousness, how to distinguish between what is right and what is wrong, and your observation skills. Okay, very nice. So sir, अगर हम बात करें आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, तो what is Shashank Singh with beyond these labels of director, labels of founder? Okay. तो शशांक सिंह कैसे इंसान है? So मैं इसको दो पार्ट्स में आपको बताता हूँ। Before 2019, Shashank Singh was a college going guy, full of aggression, और एक rigid टाइप का इंसान जो किसी की नहीं सुनता। और अगर academics की बात करें तो average academic guy, not too good, not too bad. After 2019, when I came in this field and I started observing the things, so मुझे observe करना लोगों को पसंद है, उनकी बातों को सुनना पसंद है, उनको solutions देना पसंद है, और जितना हो सकता है अपने एंड से हेल्प करना, ये मेरी एक पर्सनालिटी है कि हाउ टू हेल्प एवरीवन फ्रॉम माय एंड, जितना मैं कर सकता हूँ। आई एम नॉट द बेस्ट, बट जितना मैं कर सकता हूँ एज पर माय कॉन्शियसनेस, वो मैं करने का ट्राई करता हूँ। दिस इज मी बियॉन्ड द लेवल्स। वेरी नाइस सर। सर अगर हम बात करें ना अपनी सोसाइटी की, so there are many people who want to start a startup or somebody they are middle and they must be feeling stuck कि हम इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्या मैं पीछे चला जाऊं, दोबारा अपनी डिग्री का एक कुछ यूज कर लूं, क्या मैं सच में स्टार्टअप के लिए हूं भी या नहीं हूं। तो ये सब डिलेमा नॉर्मल है आजकल की सोसाइटी में, बिकॉज हर इंसान अपना कुछ नया करना चाहता है और सबके दिमाग में कोई आइडिया जरूर है, पर पता नहीं है कि एक्चुअली उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है और कुछ बनना है। मैं इस पॉडकास्ट के जरिए ना सबको बताना चाहती हूँ कि व्हाट एक्चुअली मेक्स अ स्टार्टअप सक्सेसफुल, क्योंकि आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल है, यू हैव 4 ब्रांचेस नाउ। सो कहीं ना कहीं उनके लिए आप कुछ बताइए कि आपके हिसाब से व्हाट मेक्स अ स्टार्टअप सक्सेसफुल। क्या वो विजन है, क्या वो टीम बिल्डिंग है कि टीम अच्छी हो तो तुम सक्सेसफुल हो, क्या वो एक क्लियर विजन है, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स है, वो क्या है? सबसे पहले अगर हम एक स्टार्टअप की बात करते हैं तो पहले आप भेड़ चाल में मत चलिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे शोज हैं, बहुत सारी चीज़ें। सो हर कोई सोच के पहले ये चलता है कि ठीक है, आई वांट टू बी एंटरप्रेन्योर और मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ। तो पहले वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में बिलोंग करते हैं स्टार्टअप से या नहीं। ओके। और जो कोई भी स्टूडेंट है, पर्सन है, वर्किंग इंडिविजुअल है, जो कोई भी स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, सो फर्स्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना ज़रूरी है। और सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है, फाइनेंसेस से हटके, फाइनेंसेस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, बट उससे पहले एक मेंटल वॉर जो आप मिनिमम 5 इयर्स तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लड़नी पड़ेगी, आपको उसके लिए रेडी रहना बहुत जरूरी है। तो ये सबसे बेसिक चीज है कि बी मेंटली प्रिपेयर। फर्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप उस चीज से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। हो सकता है आपका फर्स्ट आइडिया फ्लॉप, सेकंड आइडिया फ्लॉप हो, थर्ड आइडिया फ्लॉप हो, आइडियाज फ्लॉप होते हैं, बट इफ यू हैव दैट स्पिरिट, आपके पास वो करेज है कि बार बार नीचे आके भी वापस से उठना, बार बार डिफीट होके भी दोबारा फाइट को, वो करेज होना, सो देन यू आर एंटरप्रेन्योर एंड देन बी मेंटली रेडी फॉर द वॉर। तो अगर ये दो चीजें आपके पास हैं तो आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, आप अपनी वॉर के बारे में बताइए। क्या आपके लिए जर्नी स्मूथ थी या कुछ चैलेंजेस आपने भी फेस किए? वो सोसाइटी से क्वेश्चंस, वो फैमिली से क्वेश्चंस, वो फ्रेंड से क्वेश्चंस कि कब कमाना, कब शुरू करेगा, स्ट्रगल तो तेरा बहुत हो गया है। सो उस वॉर के बारे में आप भी बताइए। मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2019 दिसंबर में। ओके। सो व्हेन आई टुक द डिसीजन टू स्टार्ट मेटामॉर्फोसिस डैंडी स्किल्स, तो स्टार्टिंग में मुझे लगा था चीजें लाइक द थिंग्स विल गोइंग टू बी वेरी स्मूथ इन द एंटायर पाथ, बट देन कुछ CA NRC के दंगे आए, सो देन स्कूल स्टार्ट होते ही बंद हो गया। देन 22 मार्च लॉकडाउन ऑफ 2 years। सो उस पार्ट में मैं ये नहीं कहूंगा कि देयर वाज लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, तब तक स्ट्रगल स्टार्ट ही नहीं हुआ था क्योंकि स्मूथली चला गया। तो तब ना ही आपको फैमिली ब्लेम करती है ना ही सोसाइटी, बिकॉज नेचुरल कैलेमिटी है। बिल्कुल। My war begins in 2021 September. Okay. So I took loan from the bank and start my startup. Okay. That was very easy in the beginning. So हर कोई इस mindset से आता है कि आज मैं कुछ amount invest करूँगा and कल मैं कमाना शुरू कर दूँगा after 6 months और 1 year.
उसी मेंटालिटी के साथ मैंने भी स्टार्ट करा अपनी जर्नी को, बट जर्नी स्टार्ट होने के बाद पता लगा कि इतनी स्मूथ नहीं होगी। सो आई थिंक फ्रॉम लाइक 8 to 9 months जीरो एनरोलमेंट्स। ओके। अब यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि जब भी आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो आप पहले देखते हैं स्पेस। आज के डेट में ऑनलाइन स्टार्टअप्स भी हैं, सो आप ऑनलाइन के लिए भी जाते हैं तो आप एक बेसिक्स देखते हैं। यहाँ मैं उन स्टार्टअप्स की बात कर रहा हूँ जिनको स्पेस की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल स्टार्टअप्स। सो उन फिजिकल स्टार्टअप्स में जो सबसे बेसिक चीज है, जो भी आप स्पेस एक्वायर कर रहे हैं, पहले आप रिसर्च एक जरूर करके रखिए कि किस एरिया में जो आपका प्रोडक्ट है वो सेल आउट होगा। ओके। मैंने साउथ दिल्ली से स्टार्ट किया था, मालवीय नगर से, बट माय बिगेस्ट मिस्टेक वाज कि मैंने मालवीय नगर से स्टार्ट किया। अच्छा। बिकॉज वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि दिस इज द पार्ट ऑफ साउथ दिल्ली, बट मालवीय नगर इज नॉट दैट पार्ट ऑफ साउथ दिल्ली जहाँ पे बहुत लिटरेसी रेट अच्छा है या बहुत कॉन्शियस लोग रहते हैं। हार्डली 2-3% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मालवीय नगर इज दैट मच केपेबल हु अंडरस्टैंड दीज काइंड्स ऑफ प्रोग्राम। सो वहाँ पे आई फेस मेनी लॉसेस। फिर काफी सोसाइटी प्रेशर आना स्टार्ट हुआ कि बंद कर दो नहीं चलेगा, बंद कर दो नहीं चलेगा, बंद कर दो नहीं चलेगा। घर से भी आना स्टार्ट हुआ, पेरेंट्स से भी आना स्टार्ट हुआ। बट इसमें जाकिर खान की एक बहुत फेमस लाइन है, वो मैं कोट करना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स आपके एम्बिशन या सपने के अगेंस्ट नहीं होते। वो ये नहीं चाहते कि आप गरीब रहें। सो स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि व्हेन माय पेरेंट्स टोल्ड मी ना कि बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो आई फाइट अगेंस्ट दैट कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, करना है करना है करना है। वो चीज़ें चलती रहीं। बट अब जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं और अपने स्ट्रगल में हैं, आप लगे रहिए, प्रूव कीजिए। आपके पेरेंट्स को जिस दिन वो चीज़ दिखाई देगी कि नहीं, ही विल डेफिनेटली डू दैट, कि ये कर लेगा और ये छोड़ेगा नहीं इस चीज़ को, चाहे ये मर जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, सो योर पेरेंट्स स्टार्ट सपोर्टिंग यू। सो देन मैं अपने फादर का बहुत एडमायर करता हूँ इस चीज़ में। मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट किया इन एवरी फेज ऑफ माई लाइफ। सो उनका एक ही स्टेटमेंट रहता था, वो स्टार्टिंग में तो मना किया, बट व्हेन ही नोज, उन्होंने एक मुझे स्टेटमेंट बोली कि मुझे ये पता लग चुका है कि तुम छोड़ने वाले नहीं हो। सो फिर जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत पड़ी, ही केम एंड ही सेड कि मैं हूँ, यू विल डू, कर लोगे। सो इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने पेरेंट्स का। कुछ 27 lakhs के अराउंड मेरे ऊपर डेथ हुआ। सो अब वो नहीं समझ में आया कैसे उतारा जाए, क्या चीज़ है, तो वहाँ पे भी पेरेंट्स निकल के आए। सो स्टार्टअप के अंदर सोसाइटी की आपको कभी नहीं सुननी है, बट आपको इस तरीके से लगे रहना है, 100% अपना देना है। और जब आप अपना 100% देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि जो मैं आपको पाथ बताऊंगा आपको उससे सक्सेस मिलेगी। द रीज़न इज, मुझे ऋषिकेश जाना था, हो सकता है आपको मनाली जाना, बिल्कुल, बट मैं आपको कार की इंजीनियरिंग समझा सकता हूँ कि जिस कार से आप ट्रेवल करेंगे वहाँ पे, जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करेंगे, उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे रिपेयर किया जा सकता है। बाकी आपका रास्ता आपको खुद ही चलना होगा। सो वो जो कार की रिपेयरिंग है ना, तो आपको सीखना पड़ता है, बिल्कुल, कि इस कार को कैसे रिपेयर किया जाए। कहीं पे प्रॉब्लम आई, आपको सारे फ्यूल स्टेशंस को नेविगेट करना पड़ता है पूरे रास्ते। तो आपको एक रोड मैप बनाना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग इस चीज़ को लेकर चलते हैं कि प्लान बी। सो मैं प्लान बी में बिलीव नहीं करता हूँ, बिकॉज अगर प्लान बी है तो आप कभी भी, पहली बात, जो आप इनिशियल चीज़ लेके चले आप उसमें मास्टरी नहीं कर पाएंगे। सेकंड, आप कभी भी इतने सीरियस होंगे ही नहीं अपने एम्बिशन के लिए, बिल्कुल। सो ये कुछ चीज़ें हैं कि एक आप सबसे पहले नेविगेट करके रखें कि कितना फंड्स आपको लगेंगे, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही आप 25% का मार्जिन लेके चलें। सेकंड, जिस एरिया में आप बिजनेस करें, फिजिकल बिजनेस वेदर ऑनलाइन बिजनेस, बहुत अच्छे से पहले उसकी स्टडी करें। आज के डेट में लोग कहते हैं अ गुड टीम इज नीडेड, बट स्टार्टिंग में यू आर नॉट इन दैट स्टेज कि आप एक अच्छी एक अच्छा सैलरी आप प्रोवाइड कर सकें, बिल्कुल। तो आपको सब चीज़ें खुद से सीखनी पड़ती हैं। तो पहले अपने आप को वेल प्रिपेयर करें इन टर्म्स ऑफ स्किल्स, एरिया को एनालाइज करें, सारा अपना जो आपका फाइनेंसेस है एटलीस्ट 5 years तक का बैकअप अपने पास रख के चले। लोग 1 year कहते हैं, मैं कहता हूँ 5 years तक का बैकअप रख के चलिए। मेंटली प्रिपेयर रहिए, क्योंकि सोसाइटी हरास करेगी, सब लोग आपको हरास करेंगे, तो उस हरासमेंट से बच के चलिए। और एक मेंटोर अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए जिनसे आप खुल के सब कुछ कह सकें, नहीं तो मेंटल स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है,
फिर आपका सुसाइड ही एक ऑप्शन दिखता है। बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए ऑलवेज कीप अ मेंटोर इन योर लाइफ, जिससे आप खुल के सब कुछ कहते हैं ना, उल्टी कर देना, बिल्कुल। तो आप वैसे कह सके सब कुछ। तो ये स्टार्टअप के लिए बेसिक नीड्स हैं। आई थिंक मुझे बहुत ब्यूटीफुल चीजें सीखने को मिली कि बहुत जरूरी है कि जिस टाइप का मेरा बिजनेस हो उस टाइप की ही मेरी लोकेशन हो। सो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा कि मालवीय साउथ दिल्ली में इतने कॉन्शियस लोग या इतने एजुकेटेड पीपल नहीं थे जो इस प्रोग्राम की डेप्थ को समझ पाते। सो वो हमारी एक गलती थी शायद। ऑल्सो सर मुझे और जानना है, जैसे आपने मुझे कहा कि 27 लाख कुछ डेट हो गया था आप पे। हाँ जी। सो आप कह रहे हैं कि 5 साल का रख के चलिए, तो 5 साल के रखने के बावजूद ये डेट आया था या नहीं? मैं एक्चुअली 5 इयर्स का रख के नहीं चला था। अच्छा, मेरे पास लर्निंग है ये मेरी। अच्छा। मैं कुछ 6-7 मंथ का मैं बैकअप लेके चला था। सो जो 6-7 मंथ का बैकअप था, दैट इज प्रोवाइड टू यू बाय योर फैमिली, और वो आपने खुद अर्न करके रखा था? बाय माय फैमिली, बिकॉज़ लॉकडाउन था। अच्छा। सो बाय माय फैमिली। ओके, बाय योर फैमिली। सो इससे एक और चीज सीखते हैं आपसे। सो फॉर एग्जांपल इज समबडी who has got all the skills, who has an idea in his mind but don't have the financial support जैसे आपके पास था, फिर क्या करें? फिर आप स्टार्ट कीजिए ऐसे एरिया से, जैसे अगर मेरे पास फंड्स नहीं थे, या अगर मेरे पास फंड नहीं होते, सॉरी मेरे पास, तो अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो आप अपने स्किल्स को सेल आउट कर सकते हैं इन द मार्केट, प्लेस टू प्लेस जाके। जैसे अगर मैं अपने बिजनेस की बात करता हूँ, इन द नेचर ऑफ माय बिजनेस, मैं स्कूल टू स्कूल्स जाता और एक एक करके स्कूल्स के अंदर सेल आउट करने का ट्राई करता। दिल्ली के अंदर 1900 स्कूल्स हैं, सो 1900 प्लस ही हैं एक्चुअली। सो कोई एक सिंगल स्कूल तो खरीदता और वहां से मैं फंड्स को गैदर करता जी। अब यहीं पे अगर बात करते हैं, बेसिकली स्पॉन्सर्स इकट्ठे करो अगर आपके पास आपके खुद का फंड नहीं है, एंड मेक श्योर कि जो आपका आइडिया है जी, किसी के सामने भी पूरा मत एक्सपोज कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उसको चुराएंगे और अपने नाम से लॉन्च कर देंगे। बिल्कुल। तो ये इन सारी चीजों से भी बच के रहना चाहिए। जी बिल्कुल। सर हमने जान लिया कि भैया स्टार्टअप कैसे स्टार्ट होता है। आपने बताया कि हमें स्पॉन्सर्स इकट्ठे करने पड़ते हैं इफ वी डोंट हैव फंड्स। अगर फंड्स हैं तो 5 इयर्स तक के फंड्स आप इकट्ठे करके चलिए, क्योंकि स्टार्टिंग का कुछ भी नहीं पता कि कब हमारी फर्स्ट एनरोलमेंट होगी या फर्स्ट सेल होगी या फर्स्ट कस्टमर आएगा। सर अगर मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूं तो पहले तो ये मेटामॉर्फोसिस डैंडी स्किल्स के बारे में बताइए कि इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। बहुत लोग सोच रहे होंगे, मैंने भी सोचा था इनिशियली, इसका मतलब समझाइए। ऑल्सो ये ही आइडिया क्यों? ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं कि ये ही आइडिया क्यों। बिल्कुल। बिफोर स्टार्टिंग माय स्टार्टअप, मैं पर्सनालिटी हेड कोच था इन XYZ कंपनी, उनका नाम नहीं बताऊंगा। सो वहां पे काफी सारी कमियां और खामियां थी। लाइक जब वहां पे क्लासेस होती थी, सो दिल स्टार्ट अ स्क्रिप्टेड क्लास और वो सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते थे। कुछ 11th-12th के बच्चों को हायर करते थे एट द लो स्केल 8 to 9,000 फॉर अ मंथ, और उनको मेमोराइज करा के जस्ट इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट एंड चार्जिंग अ ह्यूज मनी। अच्छा। मीन्स पर सेशन शायद आपको कॉस्ट करेगा अराउंड 2 to 3,000 रुपीज। सो ऐसे उनका होता था, वीक में एक क्लास का कॉन्सेप्ट था। वहाँ पे मैंने बहुत सारी कमियों को देखा, आइडेंटिफाई किया। सो जो ओनर थे उनसे भी मेरी बहुत सारी बातचीत हुई इसके बारे में कि वी नीड टू चेंज दिस एंड दैट, बट उन्होंने उसको नहीं एडमायर किया। फिर बच्चों के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था। अब मैं आपको ऑफ कैमरा उस इंस्टीट्यूट का नाम बता दूंगा तो आप अभी भी जाएंगे और पूछेंगे शशांक सर। अच्छा। तो बच्चे आई थिंक आज 17-18 ईयर्स के हो गए होंगे, तो वो अभी भी आइडेंटिफाई कर लेंगे शशांक सर कौन थे इतने साल पहले। तो बच्चों के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड था, मजा आता था इस काम को करने में। और जैसा मैंने आपको बताया, मेरी जेन्युइन पर्सनालिटी आज की डेट में ऐसी हो चुकी है कि प्रॉब्लम्स को सुनना, आइडेंटिफाई करना, उनका रूट कॉज ढूंढना। वो शायद इसलिए भी क्योंकि आपका बैकग्राउंड साइकोलॉजिस्ट रहा है। हाँ, साइकोलॉजी मेरा है। सो इसमें मुझे बहुत मजा आने लगा धीरे धीरे। फिर फाइन आर्ट्स का मेरा बैकग्राउंड है, वोकल्स के अंदर, हिंदुस्तानी वोकल्स के अंदर। फिर थिएटर इसके साथ अटैच था, तो इसलिए मेरा इसमें इंटरेस्ट आया और मैंने स्टार्ट किया। क्योंकि इंडिया के अंदर सच में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी डिलीवर नहीं हो रहा है। बस कह सकते हैं कि जस्ट पीपल आर फूलिंग द पीपल फॉर द सेक ऑफ मनी। एक्चुअली वो चीजें नहीं हो रही हैं। तो इसलिए स्टार्ट हुआ। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि व्हाई मेटामॉर्फोसिस डैंडी स्किल्स। So Metamorphosis Dandy Skills was started by 3 friends. Okay. So friend number 1 Mandeep, देवांश and शशांक. Okay. So हमने तीनों नेम के इनिशियल्स लिए, मनदीप, देवांश, शशांक। अब कंपनी का नाम मनदीप, देवांश, शशांक नहीं हो सकता है। जी। So
वहां से फिर एक एक वर्ड को ड्राइव किया कि ऐसा क्या है जो पर्सनालिटी को भी रिफ्लेक्ट करे और हम तीनों के नाम के इनिशियल्स भी रह जाए। ओके सो वहां से फर्स्ट वर्ड बना मनदीप से मेटामॉर्फोसिस। ओके मेटामॉर्फोसिस इज द सडन चेंज। किसी भी बच्चे ने अगर बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ी होगी जी तो प्यूपा से जब बटरफ्लाई बनते हैं व्हेन दैट प्रोसेस इज वेरी फास्ट, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। ओके डैंडी, देवांश बना डैंडी। सो डैंडी मीन्स एक बहुत जॉली पर्सन, और अगर बहुत रूट्स में जाके पढ़ेंगे तो वज्र एक मेटल होता है विच इज अनब्रेकेबल। ओके सो दैट इज डैंडी। शशांक से बना स्किल्स। स्किल्स मतलब हम सबको पता है कलाएं। बिल्कुल बट आफ्टर 6 मंथ 2 पार्टनर्स बैकआउट कर गए और बिकॉज मैंने आपको बताया एनरोलमेंट नहीं आती है, सो जब इनकम नहीं, और वो करेज चाहिए आपको, तो 2 पार्टनर्स बैकआउट कर गए। आज भी वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं बट पार्टनर्स नहीं है। तो फिर एमडीएस का जो एस था वो खींच के एमडीएस को यहाँ तक लिया है। सो दैट्स हाउ मेटामॉर्फोसिस डैंडी स्किल्स स्टार्ट्स। वाओ। सो मतलब वही बात होगी कि जो एक्चुअली जो हम पेपर्स पे ड्राफ्ट करते हैं, जब वो रियलिटी में आने में बहुत वक्त लग जाता है। तो आप वो बताइए, जैसे आपने वो जब आपने वो फेलियर फेस किया ऑफ 6 मंथ जो आप कह रहे हैं, जब आपके फ्रेंड्स बैक आउट हो गए, तो व्हाट मेड यू गोइंग ऑन टिल नाउ? मतलब वो क्या थी, वो स्ट्रेंथ थी, वो क्या करेज थी, वो कहाँ से डिराइव्ड थी कि वो जब वो पीछे हटे भी तो आप नहीं हटे? ऑल्सो व्हाट वाज योर फीलिंग जब आपको स्क्रैच से आपको आपकी फर्स्ट एनरोलमेंट आई, वो भी बताइए, शेयर किए। ओके, सो पहले फेलियर की बात करते हैं, फिर फर्स्ट एनरोलमेंट की बात करते हैं। फेलियर इसलिए ही था क्योंकि प्रोग्राम और स्किल्स तो मैंने गैदर कर लिया बट मार्केट को ढंग से स्टडी नहीं किया। सो दैट्स द फर्स्ट रीजन ऑफ द फेलियर। सेकंड, कैसा लगा जब 2 पार्टनर्स ने बैकआउट किया? स्टार्टिंग में बहुत बुरा लगा कि अब अकेला कैसे करूंगा, क्योंकि ये नहीं लगा कि शायद मैं सच में ही कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, ये कभी नहीं, ये नहीं लगा, ये कभी नहीं आया, बिकॉज मुझे पता था मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस क्लैरिटी से मैंने शुरू किया था और ये आइडिया मेरा ही था। जी, तो आपने फिर लोकेशन बदली? नहीं, लोकेशन नहीं बदली, मालवीय नगर में लगे रहे। अच्छा। एंड देन फिर ऑनलाइन अपने आप ही, मतलब जब ऑनलाइन आना स्टार्ट किया तो फिर कनाडा जी, यूएई, यूके, और यहाँ से जब क्लाइंटें जाने लगी तो लोगों के बीच में नाम जाने लगा। ओके। फिर मालवीय नगर से मेरी टोटल एनरोलमेंट अगर मैं काउंट करूं दैट इज 1% ओनली। और मालवीय नगर आते कितने लोग हैं? वो आते हैं फ्रॉम गुरुग्राम, रोहिणी। अच्छा, अभी मालवीय नगर में ही है? हाँ। अच्छा। और कौशाम्बी में मैं इस टाइम पे रिलोकेट मैंने पूरा सेंटर किया है। अच्छा। क्योंकि उनको पास पड़ता है, एल्स लोग ट्रैवल करके आने लगे। अच्छा। क्योंकि जब आप लगे रहते हैं ना किसी भी चीज में और सही इंटेंशन और इंटेंट के साथ लगते हैं, सो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल। अगर फर्स्ट एनरोलमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं अपने, वो स्टूडेंट भी हैं मेरे और बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, हिमांशु मित्तल उनका नाम है, ही इज फ्रॉम द आईटी बैकग्राउंड, ही वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट एट मालवीय नगर। तो अगर हिमांशु मित्तल इसको देख रहे होंगे तो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी, क्योंकि आधे लोगों को डर था उस टाइम पे। आई वाज चार्जिंग 40,000 फॉर द प्रोग्राम। फॉर कितने ड्यूरेशन का होता है प्रोग्राम? फॉर अराउंड 1 ईयर का प्रोग्राम था। और 2022 की बात है, अक्टूबर की बात है। ओके। सो ट्रस्ट किया उसने, 40,000 पे भी किया हिमांशु ने। और डरते डरते एक स्टेटमेंट मुझे आज भी याद है, हिमांशु ने कहा था ऐसा तो नहीं है सर पैसे लेके भाग जाओगे। सो राइट नाउ इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और हमारी फ्रेंडशिप भी 2022 से 2026 आ चुकी है। सो दैट वाज द फर्स्ट पर्सन हु बिलीव्ड मी। सो उनके कॉन्शियस में या उनकी पर्सनालिटी में आपने कुछ फर्क देखा आफ्टर टेकिंग योर प्रोग्राम? ये आप उनसे पूछिए। एग्जैक्टली। सो बिकॉज अगर एज पर माय विजन में बात करता हूँ तो मुझे तो मेरे सारे स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे। बट अगर स्टूडेंट अपने मुंह से बोले कि हाँ मेरे अंदर चेंजेस हैं, बिल्कुल, सो then that thing is commendable, not from my mouth. बिल्कुल। कोई भी हलवाई अपनी मिठाई को तो नहीं बोलेगा ना बेकार। नहीं, सही बात है। So ये वाली चीजें हैं। So first enrollment I was very happy. फेलियर की अगर बात करते हैं तो 6 मंथ का फेलियर नहीं था, अराउंड 2-3 ईयर्स तक स्ट्रगल किया है और वो फेलियर रेट ऐसा ही रहा है। 2-3 ईयर्स के बाद जाके रिकॉग्नाइजेशन मिला, उसके बाद में थोड़ा हैंड टू माउथ आना स्टार्ट किया। फादर ने हेल्प आउट किया 27 lakhs को चुकाने में। उसके अंदर मेरा रोल अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ दैट इज 0। ओह माय गॉड। सो फादर ने ही सब कुछ किया, बाहर निकाल के लाए, ही ट्रस्टेड मी। सो देन आज यहाँ तक पहुंचे हैं। यहाँ पे जो भी हूँ। सो फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। एज आई सेड इन द स्टार्टिंग, फैमिली भी आपको स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये देख के इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं। बट जब आप लगे रहते हैं ना
और आप जिद्दी बन जाते हैं एक चीज को लेके, तो फिर पेरेंट्स भी आप पे ट्रस्ट करते हैं। एज आई सेड, वो आपके एम्बिशन के अगेंस्ट नहीं है, बस आपको गरीब नहीं देख सकते। बिल्कुल। ये एक बात है। सर अगर हम ये अभी आपने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, मेरे दिमाग में अभी तक वो स्टक है कहीं ना कहीं, कि कॉन्फिडेंस को एक प्रोडक्ट की तरह मार्केट में बेचा जा रहा है। सो आपके हिसाब से, जैसे हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमने कॉन्फिडेंस पे इस काउच पे बहुत बार बात करी है। किसी ने कहा है कि कॉन्फिडेंस के लिए आप जब भी स्टेज पे जाइए, तो आज भी उन्होंने कहा, वो भी पब्लिक स्पीकिंग कोच ही थे, उन्होंने बोला कि मैं आज भी जब स्टेज पे जाता हूँ तो मैं प्रैक्टिस करके जाता हूँ। प्रैक्टिस कभी भी आपको बेस्ट नहीं बनाती है, बेटर बनाती है। मतलब ये चीज़ है जो मैंने स्काउट से सीखी है और मुझे बहुत अच्छी लर्निंग लगी थी ये, कि प्रैक्टिस हमेशा बेटर बनाती है। सो एवरी टाइम आई गो ऑन स्टेज, टिल नाउ मैं प्रैक्टिस करके जाता हूँ, ताकि जबकि आज मैं कोच हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, बुक्स पढ़ते रहना चाहिए, ताकि मेरी जो होराइजन ऑफ नॉलेज है वो बढ़ती जाए। तो वो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सो इसमें अगर आप कुछ ऐड करना हो कि अकॉर्डिंग टू यू, इफ कॉन्फिडेंस इज नॉट अ प्रोडक्ट दैट कैन बी सोल्ड, इट्स अ स्किल दैट कैन बी इनकलकेटेड, तो कैसे करें? फर्स्ट, गैदर द राइट नॉलेज। जैसे आपने बताया कि एक कोच है, आई डोंट नो द नेम, बट वो आज तक प्रैक्टिस करके जाते होंगे, वो उनका स्टाइल होगा। मैं आज तक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन टिल नाउ, मैं आज तक प्रैक्टिस करके कभी किसी स्टेज पे नहीं गया और आज तक कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं गया हूँ। मेरा पर्सनल ये बिलीफ है कि आप लोगों को समझना शुरू कीजिए अगर यू वांट टू बी कॉन्फिडेंट, नॉलेज के साथ में। क्योंकि जब आप स्टेज पे जाएंगे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, या मैं यहाँ पे भी आया हूँ, सो मुझे आपको समझना पड़ेगा कि इन विच मूड और इन विच जोन यू आर राइट नाउ, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। स्क्रिप्ट कभी भी एक अच्छे स्पीकर को जन्म नहीं दे सकती। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है बहुतों का अलग भी हो, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और आप स्क्रिप्ट के बिना कब प्रैक्टिस कर सकते हैं? जब यू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ नॉलेज। और वो नॉलेज आती है एक्सपीरियंस से, और बुक्स को स्टडी कीजिए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए, और आपका भी एक पॉडकास्ट चैनल है, आप उसको भी सुन सकते हैं। सो डाइट के बारे में मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी हैं। सो डाइट, रिलीजियस, ये सब आपके पॉडकास्ट से भी देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया ओशो जी, उनका अभी तक नहीं बताया था, अब बता देता हूँ। ओशो का मेरी लाइफ में बहुत इन्फ्लुएंस रहा, बिकॉज जब मैंने उनको बहुत ध्यान से स्टडी करना स्टार्ट किया, मैंने देखा ही इज अ पर्सन विद दैट कॉन्शियस स्टेट कि वो किसी भी चीज को गलत भी साबित कर सकते हैं, किसी भी चीज को सही भी साबित कर सकते हैं। और वो सिर्फ इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ही इज वेरी मच फैक्चुअल, और जिस फैक्ट के ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर ही हैज कंप्लीट नॉलेज। सो जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज है और कॉन्शियसनेस आपके पास है और विजडम है, तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। फिर आपको ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट जी। और रही बात प्रैक्टिस की, यस प्रैक्टिस लगती है। वॉइस टेक्सचर कैसे बनाया जाता है, हाउ टू यूज योर जेस्चर्स, हाउ टू मॉड्यूलेट योर वॉइस, इन सब के लिए प्रैक्टिस लगती है, बट वो आप कॉन्फिडेंट होने के बाद करते हैं। सो दैट इज पॉलिशिंग योर प्रेजेंटेशन, बट इफ यू वांट टू बी वेरी प्रेजेंटेबल, यू नीड to gather the knowledge, consciousness and wisdom. So how this is done in your school? कैसे करते हैं ये? Okay, so first, जब भी कोई स्टूडेंट हमारे स्कूल में आते हैं, उनकी 45 मिनट्स टू 1 आवर की एक असेसमेंट होती है। उस असेसमेंट के अंदर समझा जाता है कि कहाँ ये लैक कर रहे हैं। असेसमेंट आज तक भी मैं पर्सनली खुद ही लेता हूँ। सो कोई भी स्टूडेंट आए असेसमेंट लेने के लिए, उन्हें मैं ही मिलूंगा। अच्छा। सो असेसमेंट वैसे भी फर्स्ट इंटरेक्शन ये अच्छा एक पॉइंट है कि होना डायरेक्टर के साथ ही चाहिए। फर्स्ट इंटरेक्शन, उनको पता चलेगा कि स्कूल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। एग्जैक्टली। सो एक असेसमेंट होती है, असेसमेंट के बाद में देखा जाता है इस बच्चे में कमी कहाँ पे है, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। अब आपने बात करी कि नॉलेज कैसे दी जाती है। मैं अगर एक बैच का अगर एक सेशन कंडक्ट कर रहा हूँ, सो उस बैच के अंदर मैं सबको एक इमेज दूंगा। वो इमेज प्रोवाइड करने के बाद में आई जस्ट टेल देम कि आप इसको मॉनिटर कीजिए फॉर 30 to 60 सेकेंड्स। 30 to 60 सेकेंड्स जब वो उसको अच्छे से मॉनिटर कर लेंगे, देन आई आस्क फ्यू क्वेश्चंस। सबके आंसर्स अलग अलग आते हैं, जिससे माइंडसेट का पता लगता है। फिर जब माइंडसेट का पता लगता है, देन
you are capable enough to understand कि किसको किस तरीके की नॉलेज चाहिए और किसको किस तरीके से ट्रेनिंग देना है और इसके कॉन्शियसनेस को कैसे डेवलप करना है और इसके कॉन्शियसनेस को कैसे डेवलप करना है। जिस मॉड्यूल को मैंने बताया इसको हम कहते हैं थिंकिंग, इमेजिनेशन, ऑब्जर्वेशन, सीन, क्रिएटिविटी कॉन्सेप्ट। सो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं, बट जो आपसे ये करवा रहे होंगे, जो आपके मेंटोर होंगे, उनके पास भी इतनी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि कैसे ड्राइव करना है उस चीज को। सो इसके थ्रू हम लोग जज करते हैं। उसके बाद बुक्स होती हैं। बुक्स ऐसे नहीं होती कि आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा, आपको एक अमाउंट ऑफ नॉलेज दिया जाएगा, देन यू नीड टू प्रेजेंट दैट नॉलेज। मैंने किसी बुक को पढ़ा, मैं उसको एग्जैक्टली रेप्लिका नहीं करूंगा, मैं उसका कुछ अपने आप कुछ एड ऑन भी करूंगा, कुछ सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, फिर उसको प्रेजेंट करूंगा। सो दैट्स हाउ विल फीड देम विद द नॉलेज and after that we'll start presenting that knowledge. So that's how we'll work. Present मतलब जैसे for example हम जब classes में PowerPoint presentations present करते थे, कुछ वैसा ही? Actually we use theater for that. Like एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक मूवी है द लायन किंग। जी। सो लायन किंग मैंने सबको दिखा दिया जी। अब कैरेक्टर्स बना दिया। अब वो कैरेक्टर्स जब उनको प्रेजेंट करने, अब इससे दो चीजें हो रही हैं। एक तो उनके ऑब्जर्वेशन, जैसे रफीकी एक कैरेक्टर है, तो रफीकी का पूरे लायन किंग मूवी में कोई डायलॉग नहीं है, उसका बस एक टोन है। अब नाउ दिस, इसको कौन पहली बार में इतना अडेप्ट करता है, ऑब्जर्व करता है? ये धीरे धीरे थिएटर की हेल्प से डेवलप होता चला जाता है। जूलियस सीजर के अंदर है that I come to bury Caesar not to praise him, he was my friend, faithful and just now lies he there. So ये voice modulation, articulation जब बच्चे ऑब्जर्व करते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ इनकी थिएटर तक सीमित नहीं रहती है, वो अपनी रियल लाइफ में भी चीजों को उतनी ही ध्यान से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। Very nice. क्योंकि अगर आपने ऑल्टो से अगर कार चलाना सीखा है तो ऐसा नहीं है BMW नहीं चला सकते, चला सकते हैं, बिकॉज आपकी बेसिक फाउंडेशन ट्रेनिंग हो चुकी है। बिल्कुल। सो सारी क्लासेस प्रैक्टिकली अलाइंग होती हैं, थिएटर के ऊपर बेस्ड होती है, म्यूजिक के ऊपर बेस्ड होती है, साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड होती है, फिलोसफी के ऊपर बेस्ड होती है, एंड उनको फाउंडेशन पे ट्रेन कर दिया जाता है, फिर दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। बेसिकली अवेयर बनाते हैं, कॉन्शियस बनाते हैं अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम, उससे वो ऑब्जर्वेंट बन जाते हैं। ऑब्जर्वेंट मैंने भी नोटिस किया है कि अपने लाइफ में भी, कि जैसे जैसे आप थिंग्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने लग जाते हैं या आप थोड़ा सा आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, आप अपने आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तभी हम जो चीज पे हमें नहीं आती उसे हम कॉन्फिडेंटली बोल भी नहीं पाते हैं। सब बहुत अच्छा, बहुत ही इंसाइटफुल रहा पॉडकास्ट। हमें काफी कुछ सीखने को मिला, स्टार्टअप्स के बारे में भी, आपकी रिजिडिटी के बारे में भी, कैसे रिजिड रहना पड़ता है अपने गोल्स पे। हाँ, क्योंकि इनिशियली आपको थोड़ा सेट फॉल रहेगा ही, थोड़ा सा वक्त लगेगा ही थोड़ा रिकग्निशन पाने के लिए, लोगों को आपके प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। सर एक लास्ट मैसेज उन सबके लिए जो ये पॉडकास्ट सुन रहे थे, उनमें से वो भी हो सकते हैं जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनमें से वो भी हो सकते हैं जिन्होंने कोई स्टार्टअप फेल होते हुए देखा है, या उनमें से वो भी हो सकते हैं शायद जिनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो पहला स्टेप ले सके, कि वो स्टार्टअप स्टार्ट करें या कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, और वो भेड़ चाल में लगे कि चलो मेरे फ्रेंड ने ये जॉब कर ली, मैं भी वहीं चला जाता हूँ। उनके लिए एक मैसेज, लास्ट मैसेज। सो फर्स्ट, भेड़ चाल वाले के लिए आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए और हर एक एनवायरनमेंट में रहकर देखिए। आप अगर स्टार्टअप वाले लोग हैं उनके साथ रहकर देखिए कि आपको एक्चुअल में वो फील और वो किक कहाँ से आ रही है, और आपको जहां से आ रही है आप उसको परसीव कीजिए। सेकंड, आपने एक बात कही कि स्टार्टअप्स को फेल होते हुए देखा होगा, बहुत सारे लोग आज भी फेस कर रहे होंगे। सो उनके लिए एक स्टेटमेंट डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति हमेशा कहते हैं कि क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। जो तजुर्बा, ये एक जो शब्द है विच इज एक्सपीरियंस, ये बहुत हेल्पफुल है कि अगर ये आपके पास है ना, आप कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे, और बस लगे रहिए, एक्सपीरियंस को गैदर करते रहिए, एक्सपीरियंस के साथ साथ अपने पूरे सेंसेस को खुला रखिए और अच्छी बुक्स को जरूर पढ़िए। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेंगे, क्योंकि वो पैसा नहीं है जो आपको एक स्टार्टअप करने से रोकता है, वो सोसाइटी नहीं है जो आपको किसी स्टार्टअप से रोकती है, वो फैमिली नहीं है, वो आप खुद हैं, आपके अंदर का डर है। और वो डर सिर्फ तभी निकल सकता है जब आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट होंगे कि यस
आई कैन डू दिस। सो हमेशा 10 मिनट खुद से रोज बात कीजिए, जरूर कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग 10 मिनट्स विद योरसेल्फ एवरी डे, यू आर मिसिंग द कॉन्वर्सेशन विद द मोस्ट जीनियस मैन इन द वर्ल्ड। सो खुद से जरूर बात कीजिए, और जानिए खुद को। जिस दिन खुद को जान लेंगे उस दिन आपको रास्ते क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फिर आपको सीखने की जरूरत नहीं है कि जिद्दी बने कैसे बने, आप बन जाएंगे। बिल्कुल। तो आप खुद को सबसे पहले जानिए, अपने अंदर झांकिए और सेंसेस के ऊपर कंट्रोल रखना सीखिए। बिल्कुल। उन बच्चों के लिए भी जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं, तो पहले मैं मार्केटिंग कर देता हूँ। जी जरूर। जॉइन द मेटामॉर्फोसिस लैंडिंग स्किल्स अगर आप कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं। सेकेंडली, ऑन द अदर नोट, अगर आप घर पे हैं और कोई आपको ऐसा मेंटोर नहीं मिल रहा है कि आप कॉन्फिडेंट हो सकें, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व करने से पहले मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा। दैट बुक इज हिंदी में है, ना जन्म न मृत्यु, और सेकंड बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं मृत्यु सिखाता हूँ। ये 2 बुक्स आप पढ़िए। ये बहुत डिफरेंट रहा, क्योंकि नॉर्मली जितने भी आते हैं वो लोग कहते हैं इंग्लिश में आप कोई बुक पढ़िए, तभी आप इंग्लिश में कुछ आगे बोल पाएंगे। अगर यहाँ मैं बाहर होता तो मैं बिल्कुल इंग्लिश करता। द रीजन इज, हमारी जो फाउंडेशन है, दैट मदर टंग इज हिंदी। इफ आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश एंड इफ आई वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन इन इंग्लिश, व्हाट माय ब्रेन विल डू, you will speak something in English, my brain will translate that, process that, and then speak in English. then we'll speak in English. But मैंने ये सारा प्रोसीजर काट दिया। इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है, और वो आप बाद में सीख सकते हैं when you'll become confident. बट इतना एफर्ट तब डालना जब आपको ज़रूरत है अपने आप को क्लैरिटी देने के लिए, तो वो मैं सही नहीं समझता। पहले खुद क्लियर हो जाइए, उसके बाद बहुत सारे जरिए हैं इंग्लिश सीखने के लिए। आप कुछ ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। डुओलिंगो एक ऐप है, लाइट हाउस एक बुक आती है, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश सीखना। किसी मेंटोर या इंस्टीट्यूट से स्टार्ट कर सकते हैं, हमसे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश मेरी नज़र में लीस्ट प्रायोरिटी पे रखिए। पहले खुद को एक अच्छा इंसान बनाइए, एक जेन्युइन इंसान बनाइए, और कॉन्शियसनेस के साथ आगे बढ़िए। इंग्लिश सीखी जा सकती है, बॉडी लैंग्वेज डेवलप की जा सकती है, स्टेज फियर मिटाया जा सकता है। बट अगर यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे आप स्टक्ड हैं और यहाँ पे सिर्फ गलत थॉट्स हैं, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। तो पहले यहाँ से क्लियर होइए, आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट होने लगेंगे। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी लर्निंग्स थी मेरे बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे लाइफ में स्टक नहीं रहना, कैसे अपने आप को लिमिट नहीं करना छोटी छोटी चीज़ों से कि भी इंग्लिश नहीं आती, स्टेज फियर है मुझको। पहले अपनी नॉलेज बढ़ाइए, कॉन्शियसनेस बढ़ाइए, अवेयरनेस बढ़ाइए, खुद के लिए भी सेल्फ अवेयर भी रहिए, और अपने एनवायरनमेंट के बारे में रहिए, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। इसके अंदर मैं बस एक छोटी सी बात ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसके बाद मैं खत्म करूँगा। आज मैं एक पर्सनालिटी कोच हूँ। इफ आई लुक बैक इन माय लाइफ 2018 में अगर मैं देखता हूँ, आई वाज अ वेरी 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 शाय पर्सन। अभी जैसे मैं आपके साथ बैठा हूँ, इतनी देर में मैं पसीने से पूरा तर हो जाऊँगा। मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, मैं किसी इंस्टीट्यूट नहीं गया, मैंने किसी मेंटोर को नहीं रखा। वो चेंज मैंने खुद से सीखा। जब फेलियर्स देखे, स्टडी करना स्टार्ट किया और चीज़ों को समझना स्टार्ट किया, वो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होता चला गया। तो ऐसा नहीं है कि जो शाय हैं वो कुछ दुनिया से अलग हैं, हो नहीं सकते, सब हो सकता है। राइट गाइडेंस और राइट मेंटोर की आपको जरूरत है आज की डेट में, क्योंकि यूट्यूब भरा पड़ा है बेकार की कचरे से। You need to differentiate कि कचरा क्या है और सही क्या है। वो आप करेंगे कैसे? बहुत सारे बच्चे आज की डेट में ट्यूशन क्लासेस जाते हैं और पेरेंट्स उनको ट्यूशन क्लासेस में भेज देते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जज करेगा कि टीचर उसके लिए कैसा है। कहते हैं आपको बच्चा ये 2 दिन पढ़ के देखेगा फिर बताएगा। ट्रायल क्लास, द वर्स्ट कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड। ट्रायल क्लास, बच्चा कैसे जज करेगा? टीचर जज करता है कि बच्चा केपेबल इनफ है या नहीं, और हर बच्चा केपेबल होता है। वो टीचर के ऊपर होता है कि स्टूडेंट इज लाइक अ मैथ स्टिक। टीचर को पता होना चाहिए इसको कहाँ जला के कहाँ फेंकना है कि आग लगा सकता है। एवरी स्टूडेंट इज केपेबल। तो पहले बच्चे से ये कहना बंद कीजिए कि ये जज करेंगे हाउ द टीचर इज। हर टीचर अच्छे हैं अपनी जगह, सब टीचर बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये देखिए कि
आप एटलीस्ट 1 मंथ वहां पे पढ़िए, सब कुछ कीजिए, उसके बाद ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर चेंज आया या नहीं आया। ये 2 दिन के ट्रायल क्लासेस से बचिए, ये सब फ्रॉड है। और पर्सनालिटी कोई 500 रुपए 600 रुपए के पैकेज जो यूट्यूब पे मिलते हैं, इनसे डेवलप नहीं हो सकती है। दिस इज अ प्रैक्टिकल स्किल जो करके ही सीखा जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों से बचें कि ये बंडल ले लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसी चीज़ों से बचें। और स्क्रिप्टेड क्लास से भी प्लीज़ बचें। मैं नहीं मेंशन करना चाहता इंस्टीट्यूट का नहीं, बट बहुत बड़ा नाम है और बहुत फेक नाम भी है आज के डेट में। बहुत सारे विनर्स का नाम खरीदा हुआ है और अपने साथ जोड़ा हुआ है। अब विनर का नाम लूंगा तो लोग समझ जाएंगे, बट खरीद के जोड़ा हुआ है, तो समझदार को इशारा काफी है। तो ऐसे लोगों से बचें और जाएं, सही चीज को आइडेंटिफाई करें और कॉन्शियस ब्रेन के साथ जिए। So thank you so much. Thank you. So कैसा लगा पॉडकास्ट? मैंने तो काफी कुछ सीखा. We could learn that it is not the vision, not the objectives and even not the team. क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतने फंड्स होते ही नहीं कि हम इन्वेस्ट कर पाए जो एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाते हैं. It is actually the person himself. You need to be rigid on your goals, and you need not to hear about what the society is saying or what your friends are saying. They may back out, like the Shashank's journey. He started his startup with 2 of his friends, but within 6 months they backed out. So sometimes you will not get the proper support, not financial support in your journey. But if you yourself become your greatest support, then आपका जो startup है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. So the greatest advice that Shashank gave through this podcast is कि हार नहीं माननी चाहिए. We need to keep working consistently on our goals. कभी that stage will arrive जब आपको पहली सेल मिलेगी, पहला enrollment मिलेगा या पहला कस्टमर मिलेगा. So wait for that day, और उसके बाद तो फिर कोई लिमिट ही नहीं है. Also, we get to learn that बिल्कुल सच बात है कि practice makes you better. Scripts need to be designed before you get up on the stage, but it is actually the knowledge, the horizon of knowledge that is here, that makes an individual confident. Confidence is not a product that can be easily gotten from any market or any shop. It is something that is attained through life, through experience. तो कुछ नहीं मिलेगा तो तजुर्बा तो मिलेगा ही. सो तजुर्बे के लिए काम करते जाइए. एंड आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो. प्लीज लाइक द वीडियो ताकि हम आगे भी ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला पाए. थैंक यू सो मच.